and welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran. World Cancer Day falls on the 4th of February every year. This year the theme is Close the Care Gap. Arunim Ankuran has invited Dr. Sushil Mandhania, MD Medicine, DM Medical Oncology from AIIMS, Senior Medical Oncologist, Mandhania Cancer Hospital and Research Institute of Nagpur. It's a privilege to have him here, and we'll be talking to him about cancer and so many relevant issues. A word about Arunim Ankuran. It's an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make an impact, that each person can make a difference, and that's what inspires us. So World Cancer Day is an international day marked on the 4th of February to raise awareness of cancer and to encourage its prevention, detection, and treatment. The primary goal of World Cancer Day is to significantly reduce illness and death caused by cancer. World Cancer Day targets misinformation, raises awareness, and reduces stigma. So this is a small step by Arunim Ankuran in trying to create awareness. We are lucky to have an expert like Dr. Mandhania here today. He trained at Tata Memorial Cancer Hospital, Mumbai, AIIMS, New Delhi, Santa Barbara Cancer Institute, California, USA. He is a member of the American Society of Clinical Oncology, European Society of Medical Oncology, American Society of Hematology, Indian Cooperative Network, Indian Society of Medical and Pediatric Oncology. Thank you so much, Doctor, for being here. And it's a privilege Namaskar. and pleasure to have you here. Namaskar and welcome to Eksamvad. To begin with, I think we would like to have your perspective on what is the status of cancer in this country and what are some of the experiences that you would like to share? First of all, thanks a lot for the invitation, and it's really my honor and pleasure to be on this forum for cancer awareness. And 4th of February, as Madam you had already introduced about the World Cancer Day, and the main our event is not being celebrated on the day, but it is to be done throughout the year. So this is just a mark the event, because you can see there is a lot of myths and fear about the cancer. There are a lot of increasing cases of cancer. We are seeing a lot of young patients. So the most important thing is where are we going wrong? And just to create the proper awareness about the signs, symptoms, and to decrease the fears and myths, and to remove all the misconception about the cancer treatment, diagnosis, surgery, and to remove the taboo which is attached to the disease. At the same time, to make patient more confident about the cancer treatment. So when we talk about cancer as a whole, when we hear this word itself, it's a very frightening, even for doctors, even for patients. And to be very frank, in last 1.5 years, I am also very afraid, because now daily we are seeing young new malignancies, and few of our colleagues, doctors also are coming in a very strong way with the early stage or very advanced stage malignancies. So that means nobody is immune from the disease. So when we talk about cancer in India, I think we are rapidly having a growth of malignancy, and this is, I can say from my own experience, in last 16 years, I can see that there's a rapid change in the demographic pattern of the malignancy, in the type of malignancy, age pattern of the malignancy, number of the patients. And of late, I have started seeing my old friends, family members with the malignancy. So when we talk about cancer, we are 140 crores population, and every year we have at least 10 to 12 lakhs new cases, and nearly 3 to 4 lakh deaths because of cancer. And when we talk about world as a whole, we have approximately 1 crore 80 lakh cancer malignancies in whole world, and approximately 1 crore death. So that is very big figure. And I think it is second to only after heart diseases as a most common cause of death. And in India, I think it is third or fourth number. First and second are generally heart diseases, cerebrovascular events, diabetic related chest infections, and then followed by malignancy. So
But what I feel is ki this is just the tip of the iceberg. So when we talk about our condition, the problem here is ki we have such a huge country, such a huge population, huge diversity of the population, and the poor, poverty, and very difficult terrain. And you can see the cancer is a disease where we need a lot of diagnostics and a lot of expertise, and the diagnosis is always an issue here. So most of the patients are not been registered. So that means ki whatever we have data, it is from the registry, and this register mostly in the urban population. What about the rural population? ऐसा तो है नहीं कि गांवों में कैंसर नहीं होता है. So that means we are missing a lot of chunk. And why that is important? Because that is going to give us a correct idea regarding the what is the demographic pattern of the malignancy in that area. I will give you an example. I am from Nagpur. So most common cancer in Nagpur is oral malignancy. So why it is that? Because you can see the Nagpur is famous for its kharra. Right. Nagpuri khara is world famous. You'll never get this khara anywhere in India except for Nagpur. And we have maybe in my OPD out of 100 male patients, nearly 40% are oral cancers. So that means ki if I can identify those things, then definitely government can focus their resources into that type as a whole. So that is one important thing. Second thing is ki when we talk about malignancy, we have only one hospital in mind, that is Tata Hospital. So you'll be surprised. When I was working as a resident there, we had approximately less than 1,000 beds. So a population of at that time was 120 crores, and you have got just 1,000 beds. So just is a very frightening figure and mind-boggling experiences which I had got there. So that means the amount of pressure we have and the amount of beds we have and the number of patients we have, there is no justice between these things. So the most important thing will be ki how can we get these patients at the early stage? How can we diagnose them at the early stage? Because I'll give an example. In breast cancer, out of 100 patients, nearly 52% of the patients die within a year of diagnosis. So this is a very big figure, and which is not seen in Western population. So in our condition, we see our patients in a very advanced stages, and that is the major question. How can we identify our patient at the early stage? So this is just an overall view about the malignancies in India, and next we'll discuss in further topics. सो डॉक्टर बिकॉज एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि कॉमनली जो मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एग्जैक्टली इज कैंसर एंड व्हाट आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ कैंसर? तो देखिए कैसा है कि अगर इफ यू टॉक अबाउट इन लेमैन, लोगों के दिमाग में ये होता है कि कैंसर एक छुआछूत की बीमारी है, इन्फेक्शन है. मुझे ये बताना जरूरी है कि कैंसर का मतलब होता है कि ये आपके शरीर के ही सेल्स है जो आपके शरीर के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, और दे डोंट डाई नेचुरली एंड दे गो ऑन मल्टीप्लाइंग. मुझे एक सेल्स का एक डेथ होता है जनरली 4 बार डिवाइड करके, 5 बार डिवाइड करके, XYZ नंबर ऑफ डेज के बाद वो मर जाना चाहिए. पर अगर वे वैसा नहीं होता है और वो मल्टीप्लाई करता है और डेड नहीं होता है, दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर. सेकंड, इट स्टार्ट स्प्रेडिंग. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इट डिराइव्स इट्स ओन ब्लड सप्लाई. मतलब इसको किसी की ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं है, दे विल डिराइव देयर ओन ब्लड सप्लाई. एंड द फोर्थ इज दे विल इरोड और दे विल डिस्ट्रॉय द टिश्यू व्हिच इज देयर or which is adjacent to that things. So that means कि cancer is nothing but your own cells which are out of control of your body, and they multiply autonomously. That means they don't need body signals to multiply, and they don't die as a normal apoptosis. So इसका मतलब है कि आपके शरीर के ही सेल्स है पर आपके शरीर के कंट्रोल से बाहर है. एक एग्जांपल दूंगा. जैसे आपको एक गड्ढा है, गड्ढे में से दो टोपले मट्टी हम निकाल लेते हैं, तो वो 2 टोपले मट्टी निकालने के बाद जो गड्ढा रह जाता है उसमें 2 टोपले मट्टी में आ जाएंगे. पर अगर आप वही गड्ढे में 100 टोपले मट्टी डालो तो क्या होगा? इट विल बी एक ट्यूमर जैसा. So same is malignancy. If it is a epithelial layer which is supposed to have 2 layers, and अगर उसमें 10,000 layers हो जाती है तो कैसे होगा? These are nothing but the abnormal cells, but they are from your own body and they are multiplying abnormally. This is nothing but cancer. अब कैंसर के बहुत सारे कारण भी है, और there are some preventable causes, some non-preventable causes. जनरली जो मेजर मिथ्स दिमाग में होती है कि ये जेनेटिक ही होता है, अगर मेरे घर में है तो मेरे सबको होगा, मेरे घर में नहीं है तो मुझे कोई रिस्क नहीं है. नो, मोस्ट ऑफ द कैंसर आर स्पोरेडिक. दैट मींस इनमें जेनेटिकली इसमें कोई भी या फैमिली कोई इंसिडेंसेस नहीं होते. देयर आर सर्टेन कैंसर व्हिच आर फैमिलियल,
और मोस्ट कॉमन इसमें है ब्रेस्ट कैंसर। फिर कोलोनिक कैंसर भी कुछ होते हैं जिसमें फैमिली में देखे जाते हैं, कुछ थायराइड कैंसर है जो फैमिली में देखे जाते हैं, कुछ किडनी मैलिग्नेंसीज है जो फैमिली में देखे जाते हैं। पर अगर आप हाईएस्ट जो देखा जाता है वो ब्रेस्ट है, वो भी 10% से कम है। तो ये जो बाकी की जो संख्या है मैं बता रहा हूँ वो तो हार्डली 2% 3% भी नहीं होगी। सो दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द मैलिग्नेंसीज आर स्पोरेडिक। अब हमारे जो जो मेजर कारण जो हम देखें जो प्रिवेंटेबल है, अब सबसे मेन जो प्रिवेंटेबल कारण में होता है कि एक्सटर्नल एक्सपोजर, जनरली जैसे जैसे टोबैको मोस्ट कॉमन कॉज हमारी जो कंडीशन में है टोबैको, देन इज अल्कोहल, देन सर्टन इन्फेक्शंस, then ultraviolet rays and some drugs. These are the common things, and lack of physical activity, this is one of the very big reason. और उसके साथ आ जाता है obesity. तो अल्कोहल और द टोबैको साइमरजेनिस्टिक है, दोनों अगर साथ में होता है तो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी अगेन इंक्रीजेस। तो हम जो एरिया में रहते हैं, जैसे वी आर इनटू द महाराष्ट्र फ्रॉम नागपुर, मोस्ट कॉमन कैंसर इज ओरल कैंसर। एंड उसका जो मेजर कारण है 100 में से अगर 95% भी 98% भी बोलूंगा तो वो दैट इज रिलेटेड विद द टोबैको, आइदर खर्रा या तंबाकू या किसी प्रकार का जो, बिकॉज हमारे वी एज ए कंट्री वी हैव अ नॉन स्मोकिंग टोबैको। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में स्मोक करते हैं, हमारे यहाँ पे चबाते हैं, जैसे खर्रे में, पान में, गुटके में, खैनी में, जो भी तरीके से। तो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट ओरल, थ्रोट, इसोफेजियल, क्योंकि यहाँ से खा रहे हो, यहाँ से निकल रहे हो, ये तो नीचे भी जा रहा है। तो जहां जहां उसका संबंध आता है वहां वहां कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए आप देखोगे कि ओरल मैलिग्नेंसी, थ्रोट का कैंसर, इसोफेजियल अन्न नलिका का कैंसर, स्टमक का कैंसर, कोलॉन का कैंसर, जीआई मैलिग्नेंसीज आर वेरी 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 कॉमनली लिंक्ड विद द टोबैको यूज। अल्कोहल इज अगेन वेरी सेकंड मोस्ट कॉमन कारण में से आता है। इन्फेक्शंस जनरली इसको निग्लेक्ट करते थे, आप देखोगे हिपेटाइटिस जो इन्फेक्शन ऐसे लीवर के मैलिग्नेंसीज बचती है, एच पाइलोरी जो एक वायरस है जिससे आप देखोगे कि स्टमक के कैंसर की रिस्क बन जाती है। HIV हैज गॉट 3 or 4 मेजर कैंसर्स बिकॉज ऑफ HIV वायरस, एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस is the most common cause of the most common cancer in the female, most common cause of most common cancer in the female, that is cervical cancer. आप सर्विकल कैंसर को देखोगे तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण वो होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसकी जो वैक्सीन आई है दैट इज against the human papilloma virus vaccine. So that is to prevention of cervical malignancy. So these are the preventable causes. So non-preventable causes है, one of the hereditary है, genetics है, some DNA damage because of some toxins भी हो सकता है इसमें, ultraviolet rays exposure से भी हो सकता है इसमें. So these are the commonest cause of malignancy. But there are certain things which we don't know. ऐसे बहुत सारे कारण जो हमको पता ही नहीं अभी भी। आज से 100 साल पहले जो जो चिकन पॉक्स था वो माता ही थी, पर उस समय वो माता नहीं थी, उस समय भी चिकन पॉक्स ही था, पर हमें पता नहीं था। तो अभी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता नहीं है। साइंस इज इवॉल्विंग, इट इज ए वेरी डायनामिक प्रोसेस, और डेली वी आर लर्निंग, वी आर इन द लर्निंग फेज। एंड धीरे धीरे आप देख रहे हो कि हमें बहुत सारी नई जानकारियां मिल रही है, जिससे कि हमारे कैंसर के रोकथाम में और कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका हमें मदद मिल रही है। तो one takeaway I think from what you just said, doctor, is that tobacco in the way जिस तरीके से कंज्यूम किया जाता है वो नहीं करना चाहिए. That is one moral of the story. ये तो सबको पता होता है। नहीं, कैसा होता है कि this is one thing, but there are certain observation which I had seen in my practice, and I got huge number of oral cancers. मेरे पास oral cancers बहुत ज्यादा मरीज जाते हैं। तो मैंने जो देखा है ना, आप ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, डोंट टेक दिस एज ए रेफरेंस एंड एविडेंस। आई हैड सीन कि जैसे हमारे जो दादा परदादा थे, आप देखोगे, मुझे तो याद है कि दे यूज्ड टू यूज टोबैको, वो काफी प्रमाण में, वी आर फ्रॉम राजस्थान, बहुत ज्यादा होता है वहां पे। पर आप देखो कि अर्ली कैंसर्स या अर्ली या यंग एज में हमने इतने कैंसर उस समय सुनने में भी नहीं आते कि भाई हाँ मुख में कैंसर हो गया था। तो दे यूज्ड टू च्यू टोबैको, बट नाउ व्हाट आई फील इज कि द मेजर प्रॉब्लम इज वी आर च्यूइंग टोबैको with supari, with chuna, with the friction of with the friction which is caused by plastic. So there has to be some synergistic effect, there has to be some the very toxic effect which is not seen with the pure tobacco. तो मेरा जो observation, अगर मेरा 1000 patient का observation मैं बोलता हूँ तो 90% plus patients were from the kharra. There were hardly any patient who had a tobacco along with pan. पान के साथ में जो तंबाकू खाने वाले मेरे बहुत कम पेशेंट थे जिसको था, अगर वो थे भी तो दे वर मोर देन 60 years, एंड ऑल माय यंग पेशेंट्स वेर विद द खर्रा, ऑल। और यंग में मेरा जो हाईएस्ट, जो यंगेस्ट है दैट वाज 19 years. सो दैट मींस दिस देयर इज समथिंग टू डू विद द सुपारी। तो सुपारी जो अभी आ रही है ना, आई थिंक दिस इज ए केमिकल वॉश्ड, एंड जनरली कैसा होता है ना कि देयर इज ऑलवेज देयर इज ए वर्ड कॉल्ड मार्जिन, मार्जिन मेक्स डिफरेंस। तो ये जो पैसा जो बचता है ना,
सुपारी में जो बसता है. तो दिस इज mostly what I read with the article is it's come from the Indonesia, and these come through via Bangladesh and via China, via Nepal, and these are all acid washed and some chemical washed things. They are very dirt cheap. जनरली वहां पे तो ह्यूमंस को जलाते हो सुपारी में, हिंदूज को दे बर्न इन दैट सुपारी, एंड वी आर ईटिंग दैट. So that means that may be one of the reason. This is my hypothesis, but definitely this is to be observed, and this is the common synergistic I had seen, and with इसी के कारण मैंने देखा है कि बहुत अर्ली स्टेज में आ रहे हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट. सेकंड थिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हमारे जो भी भाई बहन खा रहे हैं, अब इनको तो मना करते पर जनरली होता नहीं है कई बार, तो इन्होंने रात में एक बार ब्रश जरूर करना चाहिए, ताकि भाई उसका जो इम्पैक्ट है, जो कंटिन्यू जो 12 घंटे तक आपके सलाइवा में, म्यूकोसा में और जो दांतों में रहती है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा. और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इसको डी एडिक्शन पे जाए. जैसे जो 4 खाते हुए 2 पे है, 2 खाते हुए 1 पे है, और मुंह का ओरल हाइजीन करे, रेगुलरली डेंटिस्ट को विजिट करे, तो दैट कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, एंड दैट मे बी गिविंग अस ए अर्ली डायग्नोसिस चांस. सो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग विद द टोबैको. जो आप मैडम मुझे जो बोल रहे थे टोबैको का, यस, टोबैको इज डेफिनेटली अ कॉज, but I think there is some synergistic effect with the supari also. So what are some of the symptoms, so to say, red flags ki it's a possibility that it's cancer? So when should the patient go to a doctor and get that verified? Most important thing is कि कैसा होता है ना कि हमें ये देखना पड़ेगा कि there are signs and there are symptoms. Okay, तो symptoms are perceived by patient. म्हणजे symptoms का मतलब है जो patient बताता है, साइन का मतलब है जो डॉक्टर परस्यू करता है. ठीक, तो सिम्टम्स का मतलब है, जैसे अब मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, जैसे मुख में ओरल में गांठ होना, छाला होना जो बार बार हो रहा है, हील नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जीभ में छाला है या जीभ में गठान है, निगलते वक्त दर्द हो रहा है, आवाज में फर्क आ गया है, नेक में गांठ आ रही है, गले में गांठ है, दिस आर नॉट नॉर्मल. So if that is the case, then you should immediately consult your doctor, because this is one of the earliest sign of oral cancer. ठीक, when we go down, generally see the change in voice. जनरली कई बार ना मेरा गला बैठा है, मुझे तो अभी ठंडी लग गई है, या इज एक्सेप्टेबल. 1 हफ्ता मैक्सिमम 2 हफ्ता. अगर 2 हफ्ते के ऊपर चेंज इन वॉइस है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. व्हेन वी गो डाउन अगेन, खाते वक्त दर्द होना, निगलते वक्त दर्द होता है पेशेंट को कई बार. मेरे आई विल गिव माय एग्जांपल. माय ग्रैंडफादर हैड मैलिग्नेंसी, एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू ईट, जब खाते वक्त ही यूज्ड टू क्राई. सो माय मदर रियलाइज दिस कि व्हाई इट इज हैपनिंग, कि और बहुत स्लो खाने लग गए थे वो. तो माय मदर रियलाइज कि अरे बहुत ही स्लो खाने लग गए, क्या है. देन ही नेवर टोल्ड अस कि ऐसा प्रॉब्लम है करके. Then when we got him investigated, he had a malignancy, throat malignancy, and unfortunately it was very advanced and he died. So he died within 6 months of the diagnosis. So that means कि ये बहुत ही simple symptoms है जो patient कई बार बताते भी नहीं है, कई बार छुपाते भी है patient. तो this is, we have to observe that. So this is again one thing. Then we come to the lung. Most common जो symptom lung में होता है, खांसी होना, बलगम आना, बलगम में से खून आना. कई बार ऐसा होता है कि चलते वक्त सांस फूल जाती है, और जब एक्सरे करते हैं तो छाती में पानी दिखता है. तो पेशेंट का लिए हमारे यहाँ पे मेजर पानी का एक ही लक्षण होता है. पानी का मतलब होता है कि टीबी, बार बार उसको टीबी की दवा देते हैं. बट इफ एनी प्लूरल एफिजन, छाती में पानी को प्लूरल एफिजन बोलते हैं, विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग विद इन 2 वीक्स, दैट मींस इट इज नॉट कैंसर, इट इज नॉट अ टीबी, दैट इज फॉर श्योर. ये टीबी नहीं है. इमीडिएटली इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए. हमारे यहाँ का जो मेजर प्रॉब्लम मैंने देखा है कि विदाउट डायग्नोसिस, विदाउट कोई इन्वेस्टिगेशन ही टीबी की दवा शुरू कर दी जाती है. तो मेरे अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में, मुझे मैं अगर आप मेरी जिंदगी के 25 साल पहले जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमने भी ऐसा किया था. हमारे मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा हुआ है. जो मेरे आंखों के सामने ऐसे पेशेंट है जिसको हमने टीबी करके ट्रीट किया था. यंग बच्ची 18 साल की, इतनी टॉक्सिक, ट्यूबरकुलोसिस में इतनी टॉक्सिसिटी होती नहीं है. अगर यंग है, पानी भरपूर हो रहा है, टॉक्सिक है, इट इज नथिंग बट लिम्फोमा. It is a lymphoma, and they are respond very dramatically to treatment. पर गलती क्या थी, उसको टैप करना चाहिए पानी को, इमीडिएटली उसको सेल ब्लॉक और साइटोलॉजी के लिए भेजना चाहिए, इमीडिएटली डायग्नोसिस होना चाहिए, बिकॉज दिस आर वेरी वेरी क्यूरेबल. जी जबरदस्त क्योर रेट्स इनका, एंड दिस इज ए क्रिमिनल. अगर हम इसको मिस कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस आर यंग प्रिवेंटेबल डेथ्स. So this is one thing, and so where I will go with the investigation part in next thing. Most important now coming is the breast cancer, because this is the most common cancer in the female or urban population. It has taken over the cervical cancer. Cervical cancer is the most common cancer in the female in rural population. और अगर हम शहरी भाग में देखते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है. आपको जान के बहुत आश्चर्य भी होगा कि जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा कॉमन है. It's so huge. Today we had operated 3 breast malignancies today.
we have got a very small setup of 25 beds, and we operated 3 breast malignancies today, and already we had operated 2 malignancies yesterday. So I feel it is a mind-boggling figure. See, yeah, this is something we are wrong. कहीं तो भी बहुत मेजर गलत हो रहा है हमारे साथ में. अब वो हमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ गलत हम हो रहे हैं इस चीज में. ठीक है, अब जैसे ब्रेस्ट में जैसे गांठ है, गांठ जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनी लंप इन द ब्रेस्ट इज नॉट कैंसर. ये भी डरावना नहीं होना चाहिए. पर अगर कोई गांठ है जो जो मेंसेस से पहले बढ़ रही है, पीरियड्स के पहले, और पीरियड्स के बाद कम हो जाती है, दिस इज हार्मोनल, नथिंग टू वरी अबाउट दैट. बट कोई गांठ है जो कंटिन्यूस बढ़ रही है, साइज में बढ़ रही है, जिसमें पेन नहीं है, सिम्टम्स, और जहाँ चमड़ी के ऊपर में रेडनेस आ रहा है, चमड़ी में अल्सर आ रहा है, दाने आ रहे हैं, जैसे प्यूडी ऑरेंज, ऑरेंज के छिलके को तो दबाने के बाद दाने होते हैं, वैसे निप्पल अंदर की तरफ जा रहा है, निप्पल में से खून आ रहा है, बगल बगल आई एम शोइंग दिस, बगल में गांठें आना, दिस इज नॉट नॉर्मल. अगर ये है तो यू शुड बी वेरी एश्योर्ड कि ये कैंसर की संभावना हो सकती है. और इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं चाहूंगा कि ये अगर ऐसा होता है तो मेरी जो भी बहनें हैं, कोशिश करें कि वो सर्जन के पास जाए. क्योंकि मैंने देखा कि कई बार ना गायनी वगैरह में जनरली दे आर वेरी स्मार्ट, जनरली पकड़ में आ जाता है, पर कभी कभी मैंने देखा कि ये दूध की गांठ है, ये इस कारण से कई बार ये छूट जाती है. तो ए स्मार्ट एंड ट्रेन पर्सन विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड बाय टच. हमको एक फील करते समझ में आ जाता है कि 100% मैलिग्नेंसी की है, यस नहीं है, तो संभावना वो भी होती है. तो यू कंसल्ट ए बेटर एक्सपर्ट, और मे बी ए सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हु हैज अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द ब्रेस्ट. एंड एज फार एज पॉसिबल डोंट गो फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन लाइक चीरा वीरा, जब तक नहीं लगना चाहिए, जब तक कि प्रॉपर मैमोग्राफी हो जाए या सोनोमैमो हो जाए, ताकि हमको समझ में आए कि भाई कैसी है, उसकी वास्कुलरिटी कैसी है, उसका सरफेस कैसा है, कैल्सिफिकेशन है क्या, कैंसरस है क्या, सिस्टिक है क्या. अगर सिस्टिक है, जैसे पानी भरी हुई गांठ है, नथिंग टू वरी, व्हाई वी शुड गो फॉर देन सर्जरी एंड ऑल थिंग. जहाँ पे अगर सॉलिड है, ब्लड सप्लाई है इसमें, तो डेफिनेटली इट इज वी आर डीलिंग विद समथिंग व्हिच इज मैलिग्नेंट. तो दिस इज फॉर द ब्रेस्ट. अगर स्टमक की बात करता हूँ, जनरली आप देखोगे कि कई बार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत सांस फूल रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है. अरे व्हाई, हीमोग्लोबिन क्यों कम होना चाहिए तुम्हारा, इज इट अ नॉर्मल थिंग? नो. मेल पेशेंट कमिंग विद हीमोग्लोबिन ऑफ 9, इट इज नॉट नॉर्मल. डेफिनेटली देयर इज लॉस. दो ही कारण है, या तो बाहर जा रहा है या तो नहीं बन रहा है. अगर बाहर जा रहा है तो उसके दो ही कारण है, या तो संडास से जा रहा है, पेशाब से जा रहा है, या तो थूके में से जा रहा है. जनरली इतना मुंह से और पेशाब में से इतना जाता ही नहीं है. तो मोस्ट कॉमन इज स्टमक. दैट मीन्स या तो मलिना हो रहा है, संडास काली जा रही है. अगर हम पेशेंट को पूछते हैं संडास कैसी होती है, साहब डॉक्टर साहब काली होती है. काली संडास इज नॉट ए नॉर्मल थिंग. दैट मीन्स देयर इज समथिंग व्हिच इज देयर इन द अपर जीआई, म्हणजे कोलॉन से ऊपर, स्टमक के आसपास में कहीं तो ब्लीडिंग हो रहा है, जो नीचे एसिड में मिक्स होने से काला हो जाता है, और टट्टी के साथ में मिलते मिलते वो ब्लैक होके नीचे निकलता है. तो दैट इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, पर ये रोज हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है. तो अगर आप रोज का समझ 2 ml भी निकलता है और साल भर में होता है, तो सोच लीजिए कितना होता है इसमें. तो दैट मीन्स कि वन इज दैट इज थिंग. सेकंड थिंग इज कि कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब पाइल्स है, साल एक साल तक पाइल्स की ट्रीटमेंट लेते हैं. जनरली वो पाइल्स नहीं होता है, जनरली वो ट्यूमर होता है जिससे ब्लीडिंग होता है, और जनरली बहुत सी बार डॉक्टर बिना कुछ देखे पाइल्स की ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं. तो जनरली अगर 15 दिन में आपको अगर उसमें इफेक्ट नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, बेटर टू कंसल्ट ए रियल एक्सपर्ट, सो दैट कि ये मन से मिथ्या, ये दिमाग से निकल जाए कि भाई सही में इसमें कुछ दूसरा तो नहीं है जिसको कि हम कैंसर पाइल समझ के छोड़ दे रहे. दैट इज ब्लीडिंग पर रेक्टम. फिर लास्ट में आता है कि ओवरियन मैलिग्नेंसी, जैसे पेट के जितने भी कैंसर्स है, जैसे आज के कैंसर में जैसे संडास में बार बार संडास हो रही है, कभी कब्जी हो जा रही है, कभी पतली संडास हो रही है, संडास में से खून जा रहा है, संडास में से चिकट संडास जो होना बोलते हैं, दिस अगर बहुत ज्यादा समय तक हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो डेफिनेटली देयर इज अ साइन ऑफ कोलोनिक मैलिग्नेंसी. पेशाब में अटक जाना, या रात रो पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ना, एज मोर देन 60 ईयर्स, तो ऐसे वक्त में प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसी की तरफ से थोड़ा सा जानकारी ले लेनी चाहिए डॉक्टर से. और रही बात फीमेल्स के लिए, तो जैसे सर्वाइकल कैंसर में व्हाइट डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग है, पोस्ट कांटेक्ट के बाद में ब्लीडिंग होना है, या पेट में दर्द होना, पेट में पानी जमा होना, तो दिस आर द साइंस ऑफ आइदर सर्वाइकल कैंसर और ओवरियन कैंसर. तो इसके लिए फिर अगर ये ऐसे कुछ सिम्टम्स है, तो we should consult first expert and then you should decide what investigations are to be done. So generally what we did is हमने हमारे रोटे में हमने एक क्वेश्चन मैंने बनाया था क्वेश्चन, and what we did was कि we had some 25-30 questions. बहुत ही सिंपल था. क्या आपके मुंह में गांठ है, क्या गांठ 15 दिन से ऊपर है, क्या छाले में गांठ, जीभ में खाला है, निगलते वक्त दर्द होता है, आपके आवाज में 15 दिन से ऊपर फर्क है, खाना खाते वक्त खाना अटकता है, खांसी है, मोर देन 15 डेज खांसी में से खून आता है. बस दिस वर सम स्मॉल क्वेश्चंस.
उसको सिर्फ टिक ही करना था। अगर हमने देखा कि 2 से ऊपर टिक है, वी यूज टू सेग्रीगेट दोस फॉर्म्स, उस फॉर्म को सेग्रीगेट कर दो एंड देन फोकस योर रिसोर्सेज विद दोस 2 पीपल ओनली। व्हाई वी शुड स्क्रीन ऑल दोस पीपल हु आर एसिम्प्टोमेटिक? तो दिस कैन बी डन एज ए रेगुलर थिंग। मुझे जनरली न्यूज़पेपर में इतने सारे फालतू के ऐड आते हैं, जनरली ये इतना भी एक आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से हर संडे के दिन कि ये आपके कोई भी सिम्टम्स है, जैसे स्कूडो वो खेलते हैं ना अपन जितना भी उसमें, ये भी एक हो जाना चाहिए पार्ट का पार्टी, सो दैट कि पीपल स्टार्ट गेटिंग अवेयर, अरे यार मुझे ये होता है, आई एम गेटिंग दिस थिंग, आई एम गेटिंग वीकनेस, मेरे आवाज में काफी दिन से फर्क है। सो आई थिंक दिस विल क्रिएट रिपीटेड बोम्बार्डिंग विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पेशेंट एंड हमारा उद्देश्य अवेयरनेस रहना चाहिए, उसका डर नहीं रहना चाहिए इसमें। तो दिस आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द मैलिग्नेंसी इन मेल एज वेल एज इन द फीमेल। So, doctor, because ये सब सुन के, I think this information will be incomplete unless we also add to it. What are some of the preventive measures that people can take? कैसे है कि there are prevention are two types. One is primary prevention, second is secondary prevention. अब जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हम जो कारण से होता है उसी को निकाल दें, जैसे कि टोबैको है, स्टॉप टोबैको, अल्कोहल, prevention of alcohol, prevention of tobacco, prevention of smoking, prevention of ultraviolet rays, prevention of unnecessary drugs, prevention of all infection like hepatitis है, human papilloma viruses है. Lastly, is most important thing which is quite doable is कि you have to have a regular physical exercises. There was one study in US कि अगर हफ्ते में 4 दिन तक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली, और जो 4 दिन तक नहीं कर रहे थे, मुझे देवर द टू ग्रुप्स, तो अप्रोक्सीमेटली सम मोर देन 1 lakh कैंसर केसेस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड बाय जस्ट डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज. So this was a very big study, and the same was the number of patients in smoker and non-smoker group. So that means these are the two major causes, that means obesity, sedentary lifestyle, and the tobacco use. This is very important. And the secondary prevention is one of the thing which is doable. ये हमारे लिए हाथ में है. Secondary prevention का मतलब होता है कि we are diagnosing the disease at the very early stage. So I will give 1 or 2 examples here. Like breast cancer में secondary prevention होता है regular mammography. मैमोग्राफी में दैट इज स्क्रीनिंग मैमोग्राफी. स्क्रीनिंग मैमोग्राफी का मतलब होता है आपको सिम्टम नहीं है, आपको साइंस भी नहीं है, पर हम आपकी रेगुलर मैमोग्राफी करें जिससे कि वो आने से पहले हम उससे पकड़ सके. तो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल हियर इज मार्टिना नवरातिलोवा. You might be correlating her. So she was a very famous player in our era, and she was a tennis player. And Czechoslovakia, they had a very strict program of mammography, and she got a very early stage of malignancy, which was diagnosed only on mammography, which was not on the symptom. So this is if you can catch this disease at this stage, the cure rates are nearly 100%, nearly 100%. So this is a primary prevention. Secondary prevention. The second is cervical malignancy. You can see there is a lot of program which are going on for pap smear examination. So pap smear is the test where this is the cervix, this is the tip of your cervix. Okay, and we put a small spatula like चम्मच जैसा होता है, and we just go and remove the small mucosa from this here. A slide होती है, slide पे उसको spread करते हैं, and we can see that the results can be seen in the next 30 minutes. So any abnormal cells, definitely you are dealing with some malignancy or some pre-malignant condition. The cervical cancer doesn't directly jump into the cancer. It is a CN1, CN2, CN3 मुझे pre-malignant conditions होती है, उसके बाद वो कैंसर में कन्वर्ट होता है. So that means we can catch it at a very early stage. Then there are certain tests for colonic malignancy like stool for Ockelbert. अगर संडास में अगर खून मिल जाता है in the form of test, जनरली ये जो टेस्ट होता है ना, 1 in 1 lakh, 1 लाख सेल्स में अगर एक ब्लड का सेल्स भी होगा तो दैट विल आरबीसी होगा तो इट इज गोइंग टू कैच दैट. इट इज सो सेंसिटिव. सो दैट इज स्टूल फॉर ऑकलबर्ट. फॉर पीएसए फॉर प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसी, जैसे ब्लड में एक सैंपल लेके अगर हम पीएसए का जांच कर लेते हैं, अगर वो ज्यादा है 5 से ऊपर है तो डेफिनेटली हमें प्रोस्टेट कैंसर की मैलिग्नेंसी की संभावना ज्यादा है. ओरल कैंसर के लिए प्रॉपर ओरल स्क्रीनिंग, इसमें कोई हाईफाई टेस्ट की जरूरत ही नहीं है. अगर आप डेंटिस्ट को हर 6 महीने में जांच कराते हैं, मुंह में छाला है क्या, कहीं गांठ है क्या, या कहीं अंदर से कोई खुरदरापन लग रहा है, तो that can give us early signs कि yes we are dealing with the malignancy. So these are the secondary malignancies, secondary prevention. And the last and most important thing is कि ये कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि लोग मैमोग्राफी करें. तो मेरी this is applicable for a country like India where people are afraid of doing investigations. People don't have resources of doing that. Cost is the issue, logistics are the issue,
कौन जाएगा नागपुर करने के लिए? तो व्हाट दे कैन डू इज कि दे कैन डू अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग. जनरली इसका जो हम इसका रीजन बताते हैं कि आप कांच के ऊपर खड़े सामने देखिए. दिस इज द ब्रेस्ट हियर यू कैन सी. तो यू हैव टू सी दिस पाम. ये दिस इज अ पल्प ऑफ द पाम. चार क्वाड्रेंट में 1 2 3 एंड दिस इज 4. तो दिस इज योर ब्रेस्ट एंड इसके नीचे होता है रिब्स. तो रिब्स के ऊपर जब प्रेस करते हैं तो इफ देयर इज एनी स्मॉल ट्यूमर तो यू कैन फील दैट बिकॉज इन द ब्रेस्ट यू इफ देयर इज अ बल्की ब्रेस्ट देन विद अ स्मॉल टच you cannot feel that. And lastly is to compress the nipple area so that if there is any bleeding from this nipple it can be seen and it can be an extracted bleeding. And the most important thing if the bulky breast पे कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं इसके जो फोल्ड होती है नीचे की तो कई बार वहां पे पेशेंट डॉक्टर्स कोई देखते नहीं है तो यू हैव टू लिफ्ट द ब्रेस्ट एंड यू हैव टू एग्जामिन द लोअर दिस एरिया आल्सो व्हिच इज बिलो द क्लेफ्ट. जनरली जो बल्कि ब्रेस्ट होता है इसको जब ऊपर करोगे तो दिस एरिया इज जनरली मास. नहाते वक्त भी कई लोग मैंने देखा कि कभी कभी उसको ध्यान नहीं देते. दिस एंड लास्टली इज टू यूज द बैक्सिला. अगर ये चीजें हम अगर सेल्फ ब्रेस्ट खुद भी जांच कर ले घर पे तो मुझे लगता है कि वी कैन डायग्नोज एट द वेरी अर्ली लेवल. नॉट स्टेज में नहीं बोल सकता मैं तो अर्ली लेवल पे मिल सकती है जिसके कारण हम तुरंत हमारे डॉक्टर्स को सलाह ले सकते हैं. दिस आर वेरी कॉमन थिंग. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी व्हाट आई टेल माय फ्रेंड्स एज वेल एज माय मेंबर्स इज कि साल में एक दिन ऐसा रखिए आप जिसमें कि एक बेसिक टेस्ट अपन कर ले. जैसे एक्सरे है, सोनोग्राफी है, एज के हिसाब से. और जैसे फीमेल मोर देन 40 ऐसे एटलीस्ट एक बार पैप्समेयर कर ले. 3 साल में एक बार मैमोग्राफी जरूर कर ले. और जो अडल्ट है, स्मोकर्स है, तंबाकू खाते हैं तो एटलीस्ट 6 महीने एक बार ओरल एग्जामिनेशन कर ले. सो दिस विल गिव अस एक रफ आइडिया एंड अर्ली स्टेज में हम पकड़ने में इसको मदद मिलेंगी. और जो हाई रिस्क इंडिविजुअल है जैसे कोई कोई होता है जो रोज के 10 से 20 सिगरेट पी रहा है, 10 साल से 20 साल से ऊपर पी रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए एक लो डोज सीटी स्कैन स्क्रीनिंग आई है. दिस इज ए वेरी वेरी इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर लंग कैंसर. और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमको मिला कोविड में. कोविड में जनरली आपने देखा था कि लेफ्ट एंड राइट सीटी स्कैन यूज किए गए थे. लोग खुद जाके सीटी स्कैन कर लेते थे, डॉक्टर ने नहीं बोला तो भी. तो आउट ऑफ इन लास्ट 2 years वी हैव गॉट 8 or 9 पेशेंट्स हु वर डायग्नोस्ड ऑन कोविड सीटी स्कैन टू हैव asymptomatic lung malignancy. We had a lung malignancy registry. हम अभी तो मेरे बंद कर दियो. उस समय out of 300 patients we had operable only 2 patients. 300 पेशेंट में सिर्फ 2 ही ऑपरेबल थे. इतना एडवांस आता है लंग कैंसर. तो दिस वाज द फॉर्चुनेट कि दिस 9 पेशेंट्स जनरली मुझे तो 7 या 8 पेशेंट की सर्जरी हो गई बिकॉज दे वर done CT scan was done for some other thing and we could asymptomatically diagnose a lung, a गांठ है भाई लंग में, और जो कि सिम्टम आने को समय लगता था. हो सकता था 2-3 साल लगते थे जब तक कि शायद बहुत लेट हो जाता था. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड साइड इफेक्ट ऑफ कोविड कि कोविड CT scan we could diagnose these patients early. So that means कि definitely if we can catch hold of those people who are high risk, and these high risk people are mostly chronic smokers. Non-smoker में भी lung cancer होता है. And we have got lot of lung cancer in non-smoker females in India. And the major reason is जो हमारे यहाँ ज्यादा बोला जाता है, अभी थोड़ा कम हो गया पर पहले था smoke in the form of जो सिगड़ी है, धुआं है, poor ventilation of the home है, environmental pollutions है, धूल है. जनरली देखोगे गाँव में आप सुबह सुबह कभी भी जाया के देखना, कभी धुआं ही धुआं रहता है गाँव में. कुछ ना कुछ जलते रहता है. कभी भट्टी जल रही है, कभी सिगड़ी जल रही है, कोई अपने घर के सामने कचरा जलाता है, कोई सुबह सुबह खाना सगड़ी पे बनाता है. और जिनके जो कुछ किचन रहते हैं उसमें वेंटिलेशन तक नहीं रहता, तो दे आर कॉन्स्टेंटली इनहेलिंग दैट स्मोक एंड दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन फॉर मैलिग्नेंसी इन फीमेल्स इन इंडिया इन नॉन स्मोकर. सो दिस आर फ्यू थिंग्स. अगर इसमें से कुछ थोड़ा भी हमारे दर्शक ले सके तो आई थिंक दैट इज गुड टू हेल्प देम. So, doctor, you were just talking about breast cancer. What are some of the causes and preventive measures बोल सकते हैं शायद उसको, if you can share that. कैसा है कि I will give this current scenario of India because in US out of 8 females 1 have breast cancer. You imagine 8 में से 1 को breast cancer है. In India initial figure was I think 28, 1 out of 28. Now we are 1 out of 22. That means we are slowly catching up with the Western population. But the problem with India is the huge amount of population. हमारे पास और उनमें population में बहुत फर्क है. हम 140 करोड़ है, तो that means approximately 60 to 70 करोड़ तो फीमेल है.
So you can imagine with the 22 is to 1, we have got approximately 170 lakhs. म्हणजे 1,70,000 के आसपास न्यू ब्रेस्ट कैंसर केसेस आ रहे हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड है. हो सकता है कि अनडॉक्यूमेंटेड तो बहुत रहे हो सकते हैं इसमें. एंड दैट टू विद दिस पॉपुलेशन विद 1:8, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख हो सकते हैं अगर वो लेवल आ जाता है हमारे यहाँ तो. और वो आएगा, डेफिनेटली आएगा. दिस इज बिकॉज यू कैन सी व्हाई इट इज हैपनिंग इन रूरल, अर्बन, व्हाई नॉट इन रूरल. तो ऐसा कुछ तो अर्बन लोग कर रहे हैं ना जो रूरल नहीं कर रहा है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल अर्बन पॉपुलेशन में. द ओबेसिटी, लेट मैरिजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओबेसिटी, लेट मैरिजेस, फैटी डाइट, डाइट पैटर्न जो है हमारा आप देखोगे, एंड लो ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी. आप अगर कोई मॉल में जाके देख लो अभी, ओबेसिटी आपको दिख जाएगी कैसी है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओबेस. I don't know how this generation is. They are very very casual. Parents are very casual about the child. So this was not with our, because we never used to play on computer. We used to play on ground. So अभी तो mostly this COVID, you can see this COVID is going to increase this thing, because अभी मैंने obesity पेज बच्चों में बहुत ज्यादा देखी है. घर से बाहर ही नहीं निकलते, खेलते नहीं है. और जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द लाइफस्टाइल, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द हैबिट, then late marriages. Why late marriage? I am going to give the example for this. And the less number of children. So this is very controversial thing, because what you can see is कि generally the breast cancer is linked with the estrogenic activity. Okay. So generally जो early marriages के कारण कैसा होता है कि early childbirth शुरू हो जाता है, तो estrogen activity में break आ जाता है. So more number of children and more of the breastfeeding, this break increases. तो जितना लंबा ये एस्ट्रोजेनिक ब्रेक रहेगा उतना आपका ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन रहेगा. दैट्स व्हाई यू विल सी, दिस इज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, कि ब्रेस्ट कैंसर यू कैन सी रिलेटिवली मोर कॉमन इन अनमैरिड फीमेल्स. आप ये भी ध्यान रखना, बहुत सारे अनमैरिड फीमेल. मेरे आई हैड 3 टीचर्स, आउट ऑफ दिस 3 टीचर्स व्हिच वर ऑल 3 आउट ऑफ 3 अनमैरिड टीचर्स, 2 हैड ब्रेस्ट कैंसर एज ऑफ नाउ. मैंने जो 2 को तो देख चुका हूँ कि हो चुका है करके. दैट मींस कि इट्स ए वेरी सटल फाइंडिंग, बट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग व्हिच आई हैड सीन. एंड then comes the lifestyle के बाद में जो urban lifestyle का ये इतना पार्ट छोड़ देते हैं, तो then comes the role of family history. Nearly less than 10% of the breast cancers are because of the family history. If there is any old case of radiation, जैसे बच्ची थी जिसको लिम्फोमा हो गया था, उसको ब्रेस्ट में छाती पे रेडिएशन दिया था, तो दिस रेडिएशन itself can cause an increase of risk of breast cancer in the adult age. So these are the one of few of the reasons of the breast cancer. But fat fertile female and the age, this and the late marriages and the sometimes estrogenic activity, जैसे पहले की जो oral contraceptives they had a lot of estrogenic activity, so now we don't have that thing. So this again adds to the increased risk of the breast cancer. So these are the few common जिसके कारण breast cancer बढ़ रहा है. और exactly opposite है villages में. Villages you will never see this type of lifestyle. They are more physically active, generally do their more work. Generally the age of marriage is not that high as compared to the urban. Generally हमारे 28, 27, 20, 30 years के भी मैरिजेस शुरू हो गए. वहाँ पे जनरली 18, 19, 20 में शादियां हो जाती है. बच्चों का भी पैटर्न देखेंगे, वी हैव ए वर्किंग फीमेल, एक हो गया तो भी कौन संभालेगा, दूसरा होगा तो भी कौन संभालेगा. तो विलेजेस में ऐसा नहीं है. तो दैट्स व्हाई दैट माइट बी गिविंग देम द मोर प्रोटेक्शन. So this is one of the reason ki urban has got urban population has most common malignancies female is breast cancer. Children also susceptible to the disease. Yeah. Generally we have a lot of malignancies which we see in children, and the youngest was one day. So she was acute leukemia, just born, and she had a very severe pallor. When we got her CBC, she had a acute AML, acute myeloid leukemia. So the most common malignancies in the pediatric population is blood cancers. Second most common cancer is lymphomas. Third most common malignancy is these tumors, that are bony tumors. So these are the common malignancy which we see in pediatric population. For this, depending upon the age, in less than 5 years, the kidney malignancy like Wilms tumor, neuroblastoma, retinoblastoma in this pediatric population. आंखों के जो tumors है, these are the common. Nearly more than 50% of blood cancer. तो हाईएस्ट जो पेशेंट बच्चों में देखने मिलती है वो होते हैं ब्लड कैंसर. एंड मैं आपको आपके चैनल के द्वारा बताना चाहूंगा कि द ब्लड कैंसर इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इज वेरी क्यूरेबल, ह्यूज क्यूर रेट्स. अगर इसको सही ट्रीटमेंट मिलती है तो अगर आप एक्यूट ALL देखो तो मोर देन 90% क्यूर रेट्स है. तो जनरली दो द कैंसर इज बैड, but the cure rates are very very high in pediatric population, because they have got tremendous bone marrow regeneration. Their immunity power is much better than the adults.
and genetically they are better malignancy. The mutations are more better in the pediatric population as compared to adult population, because these are the mutation which gives aggressiveness to the cancer, and this aggressiveness of the malignancy is very bad in adult population. Same ALL in pediatric population has got more than 90% cure rates. Same ALL in adult population has got not more than 40 to 45% cure rates. So, with reference to children, blood cancer, what are some of the symptoms and when is it time to see a doctor? जनरली बच्चों में कैसा होता है कि व्हाट हैड सीन इज मोस्टली माताओं को जल्दी समझ में आ जाता है. जनरली आप देखोगे कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, गले में गांठें आना शुरू हो रही है, दांत में से खून आ रहा है, बच्चे का भूख लगना कम हो गई है, इंटेक कम हो गया है, वेट लॉस हो रहा है, एक तरीका बुखार आ रहा है, बहुत पैर दुख रहे हैं. दिस इज वेरी क्लासिकल सिम्टम ऑफ एएलएल. पैर दर्द होना is a very classical symptoms of acute leukemia, and that is ALL. ALL एक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया. तो जनरली अगर हीमोग्लोबिन कम है, कई बार ऐसा होता है भाई ब्लड की कमी है, नो, डोंट टेक इट वेरी लाइटली इन बच्चों में. जनरली व्हाट हैड, हमारे पास काफी पेशेंट बाहर गांव से आते हैं, तो उनको ब्लड दे दिया होता है, तो जनरली ब्लड के साथ में ये लोग कई बार क्या होता है ना, स्टीरॉयड देते हैं ताकि ब्लड का रिएक्शन ना हो. और अगर ये ब्लड कैंसर है और आपको अगर स्टीरॉयड मिल चुका है, by the time patient come to us that cancer is completely masked, diagnosis ही नहीं होता उसके बाद में. So very important is to, before giving blood transfusion, they should be very cautious. Even not they, it should be doctors who should be very cautious कि भाई they should investigate, they should take a proper blood, they should get a complete PS done. A PS is a very simple thing. एक 10 मिनट का काम है peripheral smear में. At least you can see कि there is abnormal cells in the PS. So it is better not to give steroid. You can give blood transfusion. Is it better? If I tell it is not a life threatening, don't give blood transfusion. So immediately send it to the higher center so that कि हमारा approach बहुत अलग होता है. Immediately we do bone marrow and then we do blood transfusion, because even by giving a blood transfusion it can change the morphology. और एक बार ये morphology change हो गई तो हमारा diagnosis बहुत मुश्किल हो जाता है. So that means hemoglobin कम होना, बार बार बुखार आना, कहीं के शरीर में blood के चट्टे, दांत में से खून, मुआस गम्स में से खून आना, गले में गांठें होना, बगल में गांठें आना, लीवर का या पेट में से कई बार ना सूजन दिखती है. माता को समझ जाती है नहाते वक्त, मिलाते वक्त. तो इमीडिएटली यू कंसल्ट योर डॉक्टर. कभी कभी इन बच्चों में आप देखोगे टेस्टिस में भी स्वेलिंग रहती है, तो टेस्टिकुलर स्वेलिंग इज आल्सो वेरी डेंजरस साइन. इट कैन बी आइदर ल्यूकेमिया, इट कैन बी लिम्फोमा, और इट कैन बी टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर. तो ये चीजें सिंपल है और बहुत ही इजीली पकड़ में आती है. गलतियां हमसे होती है, नॉट विद द पेशेंट्स. डॉक्टर से गलती नहीं होनी चाहिए कि वो अननेसेसरी स्टेरॉइड ना दे, अननेसेसरी कोई भी ट्रीटमेंट ना दे जिससे कि उसकी अगली जो इन्वेस्टिगेशंस में बाधा आ जाए और हमारा ट्रीटमेंट ही ना हो पाए आगे में, या डायग्नोसिस ना हो पाए. So is there any difference between the prevalence of cancer in men and women? When we talk about cancer, the types of cancer differ in male and female. Okay, so when we talk about in female, the most common cancer is breast, cervix, oral, then followed by GI and stomach. But when we talk about male, in Indian population, in our setup, generally is oral or head neck cancer is the most common cancer, followed by lung, prostate, and then GI. So the pattern changes. So because that's why we need to focus more with the specific disease. अगर आप फीमेल की बात करते हैं तो हम अगर 3 या 4 डिसीज पे भी फोकस कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रेस्ट, सेकंड इज जेनिटल जैसे सर्विक्स, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज ओवरी एंड एंडोमेट्रियम. We are done with the nearly 60-70% of the things. And this is very easy. We can focus this and we can see a lot of life, a lot of disease we can catch at the very early stage. And it doesn't require कि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा ना जांचों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं. मोस्टली मुझे लगता है कि प्रॉपर सिम्टम कैचिंग करना हमने सिखा दिए. I had worked in a rural population. मैं 2 साल PSC पे काम किया हूँ. So I know how things work there. They have got a very good team. हर PSC में there are 4 हेल्थ ऑफिसर होते हैं, मल्टीपल ANMs होती है, हर गांव में एक ANM होती है, हर गांव के हर घर में कितने बच्चे हैं, कितनी माताएं हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, उनकी क्या एज है, किसको क्या वैक्सीनेशन लगा, इतना स्ट्रॉन्ग डेटा होता है PSC पे. तो दैट मीन्स a PSC, I had a 45 villages. We had every data of every person. अगर हमने ईमानदारी से सोचा क्या करना है, we can do anything at that level.
So that means ki we have those things in our hand. It is only how we can use that for the further diagnosis, for the community health. So breast malignancy, if we can train them, our health worker, भैया जाके इतने पूछना तू कि हाँ माता जी आपके स्तन में गांठ है क्या, गांठ बढ़ रही है क्या, निपल में से खून आ रहा है क्या, निगलते हुए आपको दर्द है, 10 सिम्टम्स है, टिक करके बस आ जा तू घर पे. And then the medical officer can see that, yeah, this lady is showing yes, you call that lady here. We can send a vehicle, a doctor can go there and examine. So this is a very simple thing. मुझे हमको हम 100 लेडीज का मेमोग्राफी नहीं करना है, हमको वो 3 कीच करना है जिसमें लंप या कोई सिम्टम थे. So that's way we can catch this disease, we can save our precious resources, and at the same time हमारा जो yield रहेगा ना, positive yield will be very very high. Right. So several times you have said this, doctor, that early stage में अगर आ जाए तो, so what are the some of the treatments that, I mean, for a lay person just to know this is very comforting that it's treatment है. So can you talk to us about that? Before treatment, I think there is very important word we should comment about is investigation. And the most important thing in investigation is diagnosis. And diagnosis का सबसे main जो part है कैंसर में, that is tissue biopsy. अगर आपके biopsy नहीं है या आप बोलते हैं कि ये गांठ है स्तन में और ये कैंसर है, no, unless and until you have got some tissue diagnosis, it is not a cancer. So most important thing is to get a tissue diagnosis. Either it can be biopsy, it can be FNAC, सुई की जांच. पर गोल्ड स्टैंडर्ड इज गेटिंग ए बायोप्सी. अब बायोप्सी में प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट के दिमाग में रहता है कैंसर को छेड़ने से कैंसर फैल जाता है. दिस इज अ वेरी वेरी बिग मिथ. अच्छे डॉक्टर्स, एक डॉक्टर नाम नहीं बोलना चाहूंगा जो अभी ही डाइड, ही वाज एचओडी ऑफ फिजियोलॉजी इन केएम एंड ही यूज्ड टू प्रोपेगेट द सेम थिंग, डोंट डू बायोप्सी, इट इंक्रीजेस विद द बायोप्सी. व्हाट इज स्टूपिडिटी यार, इतने पढ़े लिखे लोग ऐसे बात करेंगे तो पूरी दुनिया वो कर रही है, वो बेवकूफ है क्या सब. So they create that fear into the mind, and I had seen doctors also coming with such a huge masses, 10 centimeters of breast masses. Because why? Because we had heard biopsy से कैंसर फैल जाता है, कैंसर को छेड़ना नहीं, कैंसर का औजार नहीं लगाना. This is the biggest myth in my life of cancer practice. तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इससे बिल्कुल मत डरिए. Because I'll give one example. I had one patient of 18 years, रेक्टम में 10 सेंटीमीटर का मास था, गुदे में, मुझे जस्ट संडास की ऊपर की थैली पे. तो द डॉक्टर्स वेर वेरी एडमेंट कि वी आर गोइंग टू गो फॉर सर्जरी. मतलब जस्ट गेट अ बायोप्सी डन यार. तुम इतना बड़ा उसका पूरा रेक्टम निकाल के तुम उसको कोलोस्टोमी करोगे, बाहर के संडास की थैली लगाने वाले, व्हाई डोंट यू गेट अ बायोप्सी. तो डॉक्टर्स वेर वेरी एडमेंट, अरे यार ऐसी भी सर्जरी में बायोप्सी मिल ही जाएगा. मतलब बट व्हाट इज द रॉन्ग इन गेटिंग अ बायोप्सी इन दैट. So when we got the biopsy done, so on 4th day, you will be surprised, it was a tuberculosis. It was tuberculosis. So that means कि अगर वो उसका unnecessary सर्जरी हो जाता था just because कि it is cancer. So we have to keep our eyes open कि भाई ये सही में कैंसर है या नहीं है करके. तो that is biopsy is very important. Second important thing is get a proper investigation in the form of radiology to get a. There are two things: correct diagnosis, correct organ of origin, and third is correct staging. Stage भी important करना है, because these three things will be very important in planning your treatment. So we'll take breast cancer as an example. If you are doing biopsy, if you know it is from breast, and if the PET scan or CT scan is showing it is only localized to breast, that means your main treatment is surgery. Surgery is your main treatment, because that is going to give you a cure. In the same patient with a breast cancer, with a breast lump here, CT scan is showing a tumor in the lungs, tumor in the liver, then what is the role of surgery here? समझ रहे मुझे, एक ही बीमारी दो अलग अलग स्टेज में अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए मजबूर कर देती है. तो दैट मीन्स आवर मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट के जो बैकबोन है, अर्ली डायग्नोसिस, करेक्ट साइट एंड करेक्ट स्टेजिंग. तो दिस विल गिव अस आइडिया रिगार्डिंग कि इसको डायरेक्ट सर्जरी की जरूरत है या इसको कीमो की जरूरत है या इसको रेडिएशन की जरूरत है. तो द कैंसर के ट्रीटमेंट के 3 मेजर भाग है, एक है सर्जरी, दूसरा है कीमो, तीसरा है रेडिएशन. एंड नाउ देयर इज अ फोर्थ पार्ट विच इज target therapy, where we are targeting the cancer without targeting the normal cells. So this is again very very new thing, because कैसा ना, पहले कीमोथेरेपी देते थे हम जिससे कि कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स को भी किलिंग हो जाता था, जैसे नॉर्मल सेल्स यूज्ड टू डाई एंड कीमो विद द कैंसर सेल्स आल्सो यूज्ड टू डाई. बट नाउ वी हैव गॉट a very advanced treatment where we can identify, yes, this is the cancer cells, this cell has got some receptor, and इस receptor के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है. So this receptor is only on the cancer cells.
So it attaches only on the cancer cells and thereby killing the cancer cells, not killing the normal cells. So the cure rates are very high, side effects are very low, and generally the patient which are afraid of the treatment in the form of side effects, generally they do very well. So आप इसका best example is breast cancer. You can see we have got approximately 10 to 12 target therapies in the breast cancer. In lung cancer, now we have got a very good target therapies where we are using only tablets. Even stage 4 lung cancer, which never used to survive by 9 months or 12 months. There are certain patients who are now 8 years on tablets. So there is a huge changes, and this is because of the better understanding of the cancer. कैंसर तो पहले भी हुआ था, अभी भी हुई है, पर हमको अभी जानकारियां बेहतर मिलने लगी है, जिसके कारण हमारे पास बेहतर हथियार है उसको ट्रीट करने के लिए, जो कि बहुत सटीक और बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स के साथ में हम बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते हैं, एंड दैट टू इन ए होम एटमॉस्फेयर. जनरली भर्ती की जरूरत नहीं है, बार बार आने की जरूरत नहीं है, साइड इफेक्ट्स आर वेरी लेस, एंड द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एक्सेलेंट. बहुत ही सुंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसमें. तो मुझे लगता है कि इट्स ए वेरी इवॉल्विंग प्रोसेस, और मुझे आई कैन सी दिस इवोल्यूशन इन लास्ट 18 years, एंड अब हम ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं जिसमें कि विद नेक्स्ट 10 years आई थिंक वील बी आउटडेटेड एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट. वी विल हैव अ वेरी पर्सनलाइज्ड केयर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट. एक बॉडी का ब्लड लिया जाएगा 10 ml में से तुम्हारे पूरे जेनेटिक मेकअप किया जाएगा, उसमें कैंसर सेल्स को सेंसिटिव देखी जाएंगी, जो ड्रग को सेंसिटिव वो ड्रग दिया जाएगा. That means this is the end of your treatment. It doesn't need to experiment with a different number of drugs. एक्स विट्रो हम सब चेक कर लेंगे कि कौन सा ड्रग कौन से सेल्स पे कितना एक्शन करेगा, उसका क्या साइड इफेक्ट्स रहेगा, और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे. दैट इज ए वेरी वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइजिंग ऑफ द ट्रीटमेंट विच इज स्टार्टेड. वो चालू हो चुका है, एंड दिस इज इन द एक्सपेरिमेंटल फेजेस. समवेयर इट हैज स्टार्टेड इन द ट्रीटमेंट फेज आल्सो. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर इन द कैंसर इज कैंसर प्रिवेंशन में. अभी देखा जाता था कि पहले डायग्नोसिस जल्दी करते थे, अर्ली डायग्नोसिस. अभी अर्ली डायग्नोसिस से भी ऊपर चले गए. बीमारी होने से पहले हम बता सकते हैं कि इसको बीमारी हो सकती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल इज एंजेलिना जॉली. BRCA1, BRCA2. BRCA is a gene which can be done on the blood investigation. just 5 ml ब्लड निकाल के चेक करो, BRCA1 पॉजिटिव, दैट मींस यू हैव गॉट 85% कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होना ही है. एंड BRCA2 पॉजिटिव, दैट मींस 60% चांसेस यू हैव गॉट रिस्क ऑफ ओवरियन कैंसर. तो अगर हम ये पहले से पकड़ सकते हैं तो वी नो कि why we should wait for cancer to happen. So the same thing logic Angelina Jolie did was she removed bilateral breast and bilateral breast implant कर लिए. So at least now she is saved 95% time. She may not dare get the breast cancer, but there is still 5% risk because of the mucosal layers which are there in the muscles, which might have some breast tissues which may have malignancy. But nearly now she is saved from the breast malignancy, which she was supposed to get in 85% of the time. बिकॉज ऑफ BRCA पॉजिटिव. तो ऐसे बहुत सारे जीन्स है, 60 जीन्स पैनल, 80 जीन्स पैनल, ऐसे काफी आगे है, जिसमें आपको लंग कैंसर है या किडनी कैंसर या कोलोनिक कैंसर के जो हाई रिस्क जीन्स होते हैं वो हम ब्लड से पता कर लेते हैं, और वी कैन टेल यू कि यू बेटर गो फॉर दिस, यू बेटर बी केयरफुल, यू विल हैव पॉसिबिलिटी ऑफ लंग कैंसर, बेटर पॉसिबिलिटी ऑफ द कोलन कैंसर. सो नाउ बट दिस इज जस्ट ए टिप ऑफ द आइसबर्ग. हम जस्ट शुरुआत हुए हैं इसमें. 3-4 सालों में मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा पारदर्शिता, बहुत ही स्पेसिफिकली वी विल बी नोइंग एंड वेरी गुड डेटा अबाउट दी व्हाट टाइप और किस पेशेंट में कौन सी चीज करनी है और किस से करने से फायदा होगा. ऐसे तो जानकारी हजारों है, पर ये जानकारी से हमें लाइफ बचाने में मदद मिलती है, तो ये जानकारी का महत्व है. So before we conclude this conversation, doctor, there are so many myths about cancer. Can you just talk to us about 2 or 3? And there are a lot of myths about the cancer in the form of diagnosis, surgery, chemotherapy, radiation and follow up. तो अब डायग्नोसिस के जो मिथ्स है ना, जनरली जो मैंने देखे हैं कि मेरे घर में कैंसर नहीं है, मुझे नहीं होगा, मेरे घर में कैंसर है तो मुझे होएगा ही, बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, मैमोग्राफी करने से ब्रेस्ट पे प्रेशर आता है जिससे ट्यूमर के सेल्स फैल जाएंगे, रेडिएशन से कैंसर हो जाएगा, मैमोग्राफी बार बार नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैमोग्राफी में इतना रेडिएशन होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, ब्रा पहनने से कैंसर हो सकता है, बगल में डिओड्रेंट लगाने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है बिकॉज डिओड्रेंट हैव लॉट ऑफ एल्यूमिनियम स्किन से जाता है, स्किन से लिम्फ नोड में जाता है, लिम्फ नोड से ब्रेस्ट में जाता है, इसके कारण कैंसर हो जाता है. तो दिस आर द मिथ्स एंड नंबर ऑफ मिथ्स कि शक्कर खाने से कैंसर बहुत बढ़ जाता है. आई विल टेल अबाउट दिस. फिर उसके बाद में जनरली देखा है कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, कैंसर की सेल्स को अगर छेड़ते हैं या औजार लगाते हैं तो वो बहुत तेजी से फैल जाते हैं. कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, हर कीमोथेरेपी से बाल जाएंगे,
This is not a common thing now because there are a lot of chemotherapy drugs which doesn't have a hair fall. Chemotherapy से शरीर काला हो जाएगा, बहुत गर्माहट होती है. No, this is not the right thing. Now देखिए कीमोथेरेपी के 6 डोज लेना बहुत जरूरी है. There are certain chemotherapy which are just 2 doses. There are certain chemotherapy which can go for 12 doses. कीमोथेरेपी में भर्ती करना जरूरी है. जरूरी नहीं है. इट कैन बी डन ऑन द ओपीडी बेसिस. कीमोथेरेपी का मतलब है इंजेक्शन ही होता है. नो, देयर आर लॉट ऑफ ओरल मेडिकेशन नाउ एट द कीमोथेरेपी. दीस आर मिथ्स अबाउट द कीमो. रेडिएशन में ऐसा होता है कि भाई रेडिएशन में बहुत गर्मी होगी, पूरा शरीर काला हो जाएगा, बहुत आग निकलती है उसमें और आपको गर्म मशीन में डाला जाता है. ये मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट पेशेंट्स वर्ड. दीस आर ऑल वर्ड्स which are used by the patients. So these are the words from the patient side I am telling you. Because this has been told by the patients. And in malignancy there is a very important phrase, friends and relatives behave like experts. ये सब expert रहते हैं गाँव में और सब they start giving contradictory advices. So the problem lies here. पेशेंट सब समझ के जाते हैं पर जब घर जाते हैं तो उसके मित्र मिलते हैं, रिलेटिव मिलते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये जड़ी बूटी खा लो, ये काढ़ा ले लो, ये बाबा का अमृत है, फिर ये गौमूत्र है, ये एलोवेरा का जूस है. जो ये जब शुरू हो जाता है तो जनरली वी वेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम. जनरली जो मैंने आज एक पेशेंट देखी जो सीएस सर्विस की, शी बिलोंग टू माय प्लेस. शी केम आफ्टर 7 months and for 6 months she was taking Ayurvedic treatment. We got her MRI done today. MRI was showing stage 4 disease. So that means it is nothing but a criminal death. अगर हम इसको पहले ये आ जाते या वो डॉक्टर पहले रेफर कर देते तो हो सकता है शायद क्योर हो जाती. But this is the common thing which I had seen. This is very very common. They go on taking some local medications and doctor also don't tell them very correctly कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है. You go to some correct doctor. So that way the life could have been saved. So these are the common myths कि ये major myths है. और रही बात फिर follow-up की, follow-up में जनरली जो पेशेंट जो एफ्लुएंट पेशेंट होते हैं ना, हमारे डॉक्टर ने तो पेट स्कैन ही नहीं कराया. हर 3 महीने में पेट स्कैन करना जरूरी है. तो दिस इज नॉट, देयर आर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अबाउट दिस. वी कैन नॉट एक्सपोज द पेशेंट टू अननेसेसरी रेडिएशन. So these are the different myths about the malignancies and these are just a tip of the iceberg. मुझे बहुत small example दे रहा हूँ. मेरे घर में मम्मी को पापा को अगर माता जी को कैंसर है तो उसको अलग रूम में रखा जाएगा, बच्चे को मिलने नहीं देते, खाना उसका झूठा खाने से कैंसर हो सकता है, शारीरिक संबंध से कैंसर हो सकता है. तो दिस आर ऑल मिथ्स अबाउट द मैलिग्नेंसी. नो, झूठा खाने से, झूठा मैं इनको ये बोलता हूँ कि अगर झूठा खाने से या पेशेंट के संसर्ग से या आपके कांटेक्ट से अगर होता था तो सबसे पहले तो हमारी फोटो लग जाते. सब डॉक्टर्स को कैंसर हो जाता है जो हम तो रोज ही ट्रीट कर रहे हैं आपको. तो देन दे अंडरस्टैंड, हो यार, दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग इज राइट. So I had seen very very educated people keeping their mothers or father in a very separate room, keeping their tiffin खाना अलग, बच्चों से अलग. तो this gives a very very humiliating feeling to the patient because उसको already he is suffering from malignancy and he is suffering from this type of behavior. So दोनों चीजें जब आती है तो मैंने देखा कि ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते because the patient is not in a mood to take treatment and to fight back. And that is the reason I think they go very sharply into that trap. So positive atmosphere is also very important. And कैसा कुछ जगह पे ट्रीटमेंट काम नहीं करते, कुछ जगह पे आपका साइकोलॉजी, योर मेंटल पावर, योर पॉजिटिवनेस, योर एटमॉस्फियर, योर social security, it works very 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 tremendously along with your drugs. So that means your treatment is not just a medicine treatment, it is drug along with it's a holistic approach in the form of social, फाइनेंशियल, इमोशनल स्टेबिलिटी. अगर ये तीनों चारों चीजें जब साथ में आती है तो जनरली हमने देखा कि क्योर रेट्स एंड हीलिंग रेट्स ये दोनों बढ़ते हैं. With reference to food, is there a certain kind of food that is there are a lot of myths about the food. Whenever you will see any patient having cancer, suddenly you will see उसके घर में नारियल पानी ज्यादा शुरू हो जाता है. दिन में 2 बार नारियल पानी लेंगे, कीवी का जूस लेंगे, जवारे का जूस चालू हो जाता है, जड़ी बूटियों की पत्तियां शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद में पपीते के पत्ते का जूस शुरू हो जाता है. इससे प्लेटेट बढ़ते हैं. तो दिस आर, ये पहले क्यों नहीं पता था आपको? जैसे ही आपको कुछ होता है तो ये सब इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी, फ्रेंड यूनिवर्सिटी, रिलेटिव यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें आपको देती है. बिकॉज बट दिस हैज गॉट ट्रिमेंडस टॉक्सिसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस. बिकॉज ये जो ले रहे हैं, दिस आर नथिंग बट सम टाइप ऑफ केमिकल ओनली ना. ये कुछ तो प्रकार का, दिस इज नथिंग बट सम टाइप ऑफ केमिकल. इट इज हैविंग इफेक्ट ऑन योर लिवर, किडनी एज वेल एज योर ड्रग इंटरेक्शन. So there are, I can have 1 or 2 example here. So there was one patient who had a bleeding PV, per vaginal bleeding, and had no reason why she is having this, and she was doctor.
तो आई टोल्ड मैडम आप कुछ खा रहे हो? नहीं मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? आई गॉट अ यूएसजी देयर वाज स्लाइट इश्यू विद द थिकनेस, मतलब मेरा कुछ ड्रग ही नहीं चल रहा, व्हाई इट इज हैपनिंग दैट व्हेन आफ्टर रिपीटेड आस्किंग शी टोल्ड मैं कुछ 2-3 महीने से ना नीम के पत्ते का जूस पी रहा हूँ। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग? बोले मैं नीम के पत्ते का जूस पी रही हूँ। बोले when I went with the internet and all literature, there are n number of literature of नीम के पत्ते के जो जूस से एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी बढ़ती है, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी से ईसोफेजियल प्रोलिफरेशन बढ़ता है, उससे ब्लीडिंग होती है। अब ये बताइए मुझे कि ये कैन इजीली एक्सप्लेनेबल? ऐसे एक्सप्लेनेबल था ही नहीं वो। सो दैट मींस एवरीथिंग हैज गॉट समथिंग इन योर बॉडी। सो इट इज बेटर कि आप अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करें। कीप इट वेरी सिंपल, सिंपल रखो इसको। दाल चावल सब्जी रोटी जो आपके घर के सिंपल चीजें थे वो खाइए। फालतू फालतू चीजों को बिल्कुल, बाहर की चीजों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। प्रॉपर हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 से 4 लीटर पानी होना बहुत जरूरी है ताकि आपका टॉक्सिन बाहर निकले, टॉक्सिन दवाइयां बाहर निकले, किडनी को फ्लश आउट हो, टॉक्सिन्स का जो इफेक्ट कम से कम बॉडी में रहे। फिर इट शुड बी गुड लाइफस्टाइल इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ऑर्गेनिक हो सके जब तक बहुत अच्छा, नहीं मिलती है अगर मिल पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी फ्रूट्स यूज कर रहे हैं उसके छिलके निकाल के यूज करें, इसको कोई गर्म पानी या गर्म उबालने की जरूरत नहीं है। संभव हो सके जब तक जूसेस ना पिए, फ्रूट्स ले, क्योंकि वी आर वेस्टिंग अवर इंपॉर्टेंट फाइबर्स in juices में you are just liquids and you are throwing out those fibers. These are very important fibers. It has got excellent antioxidants, it has got excellent fiber effect for the motion, so you should not throw that. These are the simple thing. Water intake, और रात में भी important चीज है कि खाना और सोने के पहले एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, so that your excretory and digestive mechanism becomes better. There was one study in breast cancer where the risk of relapses were less in those patients who had a difference between the sleep and diet of 3 hours. So there are इसके लिए स्टडीज भी है। अवॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स, देयर आर स्टडीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें देखा गया था कि जो पेशेंट्स कीमो के दौरान एंटीऑक्सीडेंट खाए, जिन्होंने कीमो के दौरान एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाए, तो पेशेंट यूज्ड टू टेक एंटीऑक्सीडेंट ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एट हायर रिलैप्सेस, एंड इसका रीजन बीइंग एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट्स नॉर्मल सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल इंजुरी, बट इट आल्सो प्रिवेंट्स द कैंसर सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल इंजुरी। समझ रहे? तो इसके कारण इसका मतलब है कि हर चीज के अपने दुष्परिणाम है। तो कोशिश करें कि खुद डॉक्टर ना बने, किसी की ना सुने, अपने डॉक्टर पे भरोसा करें, और वो आपका कोई बुरा नहीं चाहेंगे। अगर अगर एक सेंसिबल डॉक्टर है, कोई अपना मरीज का बुरा नहीं चाहता है, वो कोशिश रहती है। हमारा तो आप तो घर चले जाते हो, पर हमारे दिमाग में रात भर भी पेशेंट घूमते हैं कि भाई ये इसको ये तकलीफ है, इसको तकलीफ है। तो वी आर वेरी कंसर्न अबाउट आवर पेशेंट, बट ओनली प्रॉब्लम इज कि व्हेन देयर इज अननेसेसरी थिंग व्हिच अ पेशेंट डूज, so it create lot of problems in our treatment plan. So avoid those things, keep it things very simple. आप नॉन वेज खा सकते, बिल्कुल खा सकते, दाल चावल सब्जी रोटी अंडा मटन चिकन फिश, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट शुड बी होम कुक, इट शुड बी प्रॉपरली कुक, इट शुड नॉट बी बासी, रात का सुबह, सुबह का रात को नहीं। तो ये फ्रेश लेना जरूरी है ताकि आपका जो इनडाइजेशन ना हो, जिसके कारण आपका नए इंटरेक्शन ना हो और आप स्वस्थ रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फूड शुड बी वेरी सिंपल। देयर आर लॉट ऑफ साइट्स, आप देखोगे फूड्स के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए का फूड डाइट देते हो, कैंसर का, डिटॉक्सिफिकेशन का, अल्कलाइन वाटर है बकवास चीज एकदम, जो कि इतना जबरदस्त बेचा जा रहा है। आप मुझे बताओ इसका सिंपल एक लाइन में मैं बोलूंगा, जो आपके पूर्वज जो खाते थे ना वो सबसे बेस्ट था। आवर ग्रैंड मदर जो यूज करती थी दैट वाज द बेस्ट। वो उन्होंने प्लास्टिक में कभी नहीं खाया, वो पतरल में खाया। उन्होंने फ्रिज का पानी नहीं किया, उन्होंने मटके का पानी पिया। उन्होंने कोई टेफ्लॉन के बर्तन में खाना नहीं बनाया, उन्होंने लोहे के बर्तन में खाना बनाया। उन्होंने फ्रेश ही खाया, उन्होंने सिगड़ी पे ही खाया, उन्होंने ऑर्गेनिक ही खाया, उन्होंने स्टोर डब्बे के कुछ नहीं खाया, उन्होंने ताजे ही खाया। तो दैट मीन्स कि दे वर मोर स्मार्टर देन अस। सो गो विद द नेचर। Before we finish, Doctor, I have another question. I'm curious, what made you decide to become a doctor? And if you can share that with us. Not specific about a doctor, because it was maybe उस समय ज्यादा कुछ समझता नहीं था हमको। मेरे घर में मेरे ब्रदर डॉक्टर बने तो मुझे लगा मुझे भी डॉक्टर बनना है। बट यस, ऑन्कोलॉजी it was very determined because I think it was my second year of MBBS. My grandfather got malignancy. So मैं जब उनको टाटा लेके गया ना, तो I had a very bad experience, खतरनाक एक्सपीरियंस था मुझे। It was a very traumatic experience for my life. मुझे रहने का प्रॉब्लम, मुझे रहने की जगह नहीं वहाँ कहीं। हम स्वामीनारायण मंदिर में रुकते थे, सोचो आप, मंदिर में, ठीक है। वहां पे उनको दाल लेने के लिए मुझे 1 घंटा लग जाता था। क्यों? तो मिर्ची की दाल नहीं मिलती थी, बिना मिर्ची की दाल नहीं मिलती थी।
तो आई हैड ए वेरी बैड एक्सपीरियंस। मुझे अपॉइंटमेंट सुबह से लेकर रात तक नहीं, हमको समझ भी नहीं आ रहा क्या करना चाहिए उनको। और देन व्हेन वी केम बैक हियर आरएस रोस्टेशन तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में उनका रेडिएशन हुआ, मुझे लगता है कि एक जानवर का कैसा ट्रीटमेंट होता है वैसा हुआ था उनका। तो मुझे लगता है कि वाई डॉक्टर्स वे सो इनसेंसिटिव, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि यार उनको मुंह में छाले हो रहे हैं, वो उल्टियां कर रहे हैं, उनका इंटेक बहुत बैड है। नोबडी हैड एनी कर्टसी रिगार्डिंग कि भाई कि राइस ट्यूब डाल दो यार इसको, उसको खाने के लिए सिंपल तुम मिल्क वगैरह राइस ट्यूब के थ्रू दे सकते हो, उनका पेन कम कर सकते हो, उनकी तकलीफ कम कर सकते हो। इट वॉज वेरी वेरी इनह्यूमन, मुझे एब्सोल्यूट इनह्यूमन। और उसके बाद मेरे घर में 3 मैलिग्नेंसी, मेरे अंकल हैड ब्लड कैंसर, मैं मामी जी हैड ओवरियन कैंसर। सो मैंने तब सोच लिया यार आई विल गो इनटू मैलिग्नेंसी ओनली। And then when I did from AIMS, I was the first person in Nagpur to come as a super specialized degree in AIMS in last 70 years. मुझे तो लोग हंस रहे थे, तुम्हें नागपुर क्यों जाता भाई, नागपुर में क्या है तेरे पास? मतलब ओके, आई विल गो टू माय प्लेस ओनली बिकॉज देयर वाज नो क्वालिफाइड oncologist in Nagpur at that time. So I started my own setup because I didn't want to contact with any of the corporate hospitals because I know their working culture, and my I was no, even if you are doing, you can do a lot of good thing even in a private practice. तुम्हारे हाथ में, nobody is there to boss you. तुम्हारा कोई, तुम अपने हॉस्पिटल खुद भगवान हो. If I want free, we do free of charge. If the patient is poor, we do free treatment. It doesn't make any difference for us. क्योंकि उससे मैं गरीब नहीं होने वाला. बट मुझे ऐसा लगता है कि डिनाइंग ए ट्रीटमेंट टू एलिजिबल पेशेंट इज ए बिगेस्ट क्राइम. तो वो मैं कर सकता हूँ ना, आई कैन डू दैट. वी आर लॉट ऑफ डोनर्स. मुझे पैसे के अभाव में कोई बिना ट्रीटमेंट के नहीं जा सकता मैं ऐसे. हाँ, उसका कुछ एटीट्यूड के अभाव में जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट इफ द पेशेंट इज पुअर, ही नीड्स ट्रीटमेंट, देन इट बिकम्स आवर रिस्पांसिबिलिटी. वी विल अरेंज फंड फॉर दैट. ओनली थिंग इज वी नीड ए डेडिकेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम द पेशेंट साइड कि उसको ट्रीटमेंट लेना है, बस उतना इंपॉर्टेंट है. सो मुझे लगता है कि दैट वाज अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ विथ माय नियर वंस. So which made me to go with the malignancy, that cancer treatment के पॉइंट ऑफ व्यू से. and I'm really happy, and whatever way I am doing, जो भी मैं छोटा मोटा भी कर पा रहा हूँ पेशेंट्स के लिए, जो भी मेरे साथ संबंध होता है उनके लिए, it makes me very very happy about my patients कि भाई at least you do your part. You cannot treat whole of the world, but जो आपके संबंध में आ रहे हैं, जो आपके आजू बाजू में है, जो आपका स्टाफ है, आपके लोग है, अगर आप उनको भी खुश रख सके, उनके लिए अच्छा कर सके और कोई गलत काम ना करो, तो यू हैव डन योर लाइफ. आपकी जिंदगी का अर्थ हो गया जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हो. Absolutely. Is there a particular experience that you would like to share when someone came back to you and There are a lot of things. There are a lot of patients who taught us. Patients से बहुत सीखने मिलता है अगर आपकी आंखें खुली रखना चाहो तो आप. There are a number of experiences. There was one patient like his name was Ballu. He was Sardar and बहुत पुअर था, बहुत ही गरीब. वो जो साइकिल के पीछे कंबल अम्बल लगा के बेचते हैं ना, वो वैसा बंदा था. बट उसकी एज थी आई थिंक सम 20 to 23 ईयर्स. मैं बच्चा था वो माँ बाप उसके काका के लिए बस उसको गोद में नहीं उठा सकते थे वो, क्योंकि वो था 80 किलो का. पर इतना लाड़का था वो सबका. तो व्हेन ही केम, ही वाज अ बर्किश ल्यूकीमिया. इतना खतरनाक कंडीशन में वी गॉट हिम आउट, बट सम अनफॉर्चुनेटली ही गॉट अ सीवियर सेप्सिस एंड ही वेट ऑन वेंटिलेटर. अब मुझे बहुत टेंशन. उतने सरदार, कम से कम 40-50 सरदार रोज हॉस्पिटल के बाहर. तो पेशेंट यूज्ड टू टेल, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल, सोचिए मर गया तो तू तो गया बोले, यू आर गोइंग टू बी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े मिलेंगे कहीं बाहर बोले. बोला नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू ट्रीट हिम बोला. बिकॉज दे हैड अ ट्रेमेंडस फेथ इन मी एंड दे टॉट मी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेल कि मुझे बड़ा गिल्ट होता था, सर डॉक्टर साहब बहुत खर्चा हो रहा है तुम्हारा. उनको बोलता था मैं कि यार बहुत खर्चा हो रहा है, डॉक्टर साहब खर्चे की चिंता मत करो, यू कैरी ऑन, यू कैरी ऑन. आई यूज्ड टू फील यार मैं कैसे हेल्प करूं इनको. वी गॉट लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडिया, यूके से गुरुद्वारा से फंड है हमारे पास में उसके लिए. देन ही वाज ऑन 32 days ऑन वेंटिलेटर मैडम, 32 days, एंड वी गॉट हिम आउट. वो बाहर आ गया और वो आया. बाहर आने के बाद में देन देयर वाज अ ह्यूज बिल ऑफ माइन. तो मैंने बोला मेरा बिल पूरा माफ, आई गॉट माई रिवार्ड, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें. हाँ, और उसके बाद में वो अभी भी जिंदा है मैडम. नाउ इट इज 7 years एंड स्टिल इज डूइंग वेरी वेल. तो दैट रिलेटिव्स टॉट मी कि छोड़ो मत यार, डू योर बेस्ट, यू आर नॉट गॉड. भगवान ने तुम्हारी उसकी लकीर भगवान ने लिखी, तुमने नहीं. तुम मक्कारी कर रहे हो अगर तुम उसको आधा अपनी ईमानदारी से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तो. हाँ, रही बात गिल्ट की, यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग थिंग. ठीक है, जब जो उसने भेजा है, उसने लकीर भी भेजी है, तो वो रिसोर्सेज भी भेजेगा. बट वो एक ऐसे एग्जांपल से कि जिसने मुझे सिखाया कि यू डू योर बेस्ट थिंग.
You put your 100% efforts, and if you are right and you have got right team, जनरली आई हैड सीन कि मिरेकल डू हैपन. वैसी एक और एक पेशेंट थी जो जो मेरे प्रैक्टिस के अर्ली स्टेज में थी. शी वाज एक्यूट ल्यूकेमिया विद मिडेस्टिनल मास, एंड उसके 6 महीने की बच्ची थी, और रात के 1 बजे के आसपास वो शी लैंडेड अपॉन वेरी वेरी बैड फेस. एंड आई वाज एट दैट टाइम इन ए वेरी चैरिटेबल हॉस्पिटल. आई डिडंट रिमेंबर दैट. उसके रिलेटिव भी बोलते, सर आप उसकी व्हीलचेयर आपने खींचते हुए लेके गए थे पहले ऊपर. आई डोंट रिमेंबर दैट पॉइंट. फिर जब उसका वो हो गया तो 2-3 बजे उसकी बहने वगैरह आए, तो मैंने बोला यार इसका संभव नहीं लग रहा मुझे. तो दे गिव मी स्ट्रेंथ. सर आप यू डू योर बेस्ट बोले. मतलब बहुत खर्चा हो सकता है बोला उसमें, वेंटिलेटर पे जाएंगे तो यू डू योर बोले. तो यस ओके वी स्टार्टेड. मैडम यू विल नॉट इमेजिन, वो भी 30-40 दिन तक वेंटिलेटर पे थी मैडम. शी केम आउट. वो तो मेरे प्रैक्टिस के अर्ली स्टेज में था. अभी 12-13 साल हो गए. उसकी बच्ची कितनी बड़ी होगी. सो दिस आर वेरी वेरी मोटिवेटिंग थिंग्स विच मेक अस कि भाई तुम अपना एफर्ट्स लो, rest is God, and you cannot be God. Even as one patient like this can motivate you to work for 100 patient like this. 100 में से हम तुम एक को भी बचा पाए जो कि जाएगा ही ऐसा सोच के तुमने छोड़ दिया था, तो इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस, नॉट फॉर यू बट दैट फैमिली. आज वो जिसकी माँ जिंदा है, या जिसकी वो बेटी है, जिसका वो वाइफ है, you can imagine the difference which it has created in that family. Yes, तो absolutely. exactly these are very motivating. It gives a lot of happiness. मजा आता है, अच्छा लगता है. Thank you so much, doctor. It was such a pleasure talking to you. Thank you for sharing your expertise और आपने इतनी Thank you. जानकारी जो दी है. I am hoping that it will benefit a lot of people. And I Yeah. think for me, what you said towards the end is the biggest inspiration, कि हम अपना बेस्ट कर सकते हैं. That's it. Yeah. बाकी तो बिल्कुल ऊपर बिल्कुल वाले के बिल्कुल. हाथ में ही है. No, I learned from this. These are not things which are shown, which are taught in your medical field or academic type. But जिंदगी बहुत सिखाती है. हर पेशेंट आपको सिखाता है. ये डॉक्टर पे है कि वो कितना सीखना चाहता है. हर पेशेंट कुछ ना कुछ सिखाता है. मैंने एक्स नंबर अब देखे कि कई बार जो देखा मैंने, गरीब पेशेंट सबसे खुददार होता है. वो कभी आपसे कंसेशन की बात नहीं करता, कुछ नहीं करता है. जब बाहर जाके पूछते हो तो वो बातें करते रहते हैं. क्या प्रॉब्लम है? कहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं. अरे बताओ तो तेरे क्या प्रॉब्लम है. तो एक जना क्या बोलता है, सर हमारे पास जाने के पैसे नहीं. यू कैन इमेजिन. Oh my God. मुझे ऐसे भी है रहते हैं, और ऐसे तो बहुत रहते हैं मैडम. तो आप बताओ मुझे, तुम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो. अगर तुम लोगों को अगर तुम उनके लाइफ को अच्छा नहीं कर पाए तो तुम्हारी व्हाट इज यू आर डूइंग देन. व्हाट इज योर हॉस्पिटल, व्हाट इज योर मनी फॉर देम. तो ऐसे भी रहते हैं. तो योर एम्पैथी एंड योर सिंपैथी शुड बी फॉर द लोवेस्ट स्ट्रैटा पीपल. अमीर आदमी तो कहीं भी ट्रीटमेंट ले लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं लेने का. मेरा गुरु ने बहुत अच्छी से सिखाया. जो इंग्लिश में बोलता है और जो बहुत अंग्रेज है और जो बहुत अमीर है, दे आर थैंकलेस. ये किसी के नहीं है. गो फॉर पुअर. ये तुम्हारे को दुआ देंगे, ये तुम्हारे है, और इनके लिए सब कुछ करो, बिकॉज इनके लिए कोई नहीं है. सो दिस आई हैड लर्न फ्रॉम माय गुरु, दैट इज डॉक्टर श्रीपद बनावली. ही इज अ हेड ऑफ टाटा हॉस्पिटल नाउ. तो ही टॉट मी एंड आई हैड केप्ट दिस एज माय गुरु मंत्र. मैंने अभी तक वो रखा है अपने लिए कि इनके लिए मैं कुछ भी करता हूँ. Because I do for any extent I can go for this patient. If I feel कि I can save them, if I feel कि they are financially deprived, and I will see sure कि भाई पैसे के हवा में तो नहीं मरने दूंगा. बाकी जो भी हो, बाकी there's a different thing. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. And I'm so Thanks a lot. grateful. हमको भी मजा आया आपसे बात करके. So grateful for your time, and thank you so much. All the very best Thank you. doing the great work you're So doing. Wonderful. thank you.